السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ کشمیر کے علاقے پونچھ میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ایکچولی کشمیر میں جو بھی فریڈم فائٹرز ہیں، کشمیری مجاہدین کہہ لیں یا عام سویلینز کہہ لیں، جو کہ انڈیا کی جو آکیوپیشن ہے ان کے اوپر قبضے والی فورسز ہیں، ان کے خلاف جب بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں، جب بھی کوئی نہ کوئی ایکشن چھوٹا موٹا لیتے ہیں، تو اس کو انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کے اس میں لے آتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کا بیانیہ ہوتا ہے، ہمارے حساب سے وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ فریڈم فائٹرز ہیں جو کہ 7 دہائیوں سے 70 سال سے اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، اور انڈیا کی جو غاصبانہ فورسز ہیں، 7 لاکھ فوجی وہاں پر تعینات ہیں، اس کے علاوہ پولیس فورس ہے بے شمار جو کہ وہاں تعینات ہے، اور ہر ولیج کے اوپر آپ سوچیں، اور ہر گاؤں کے ہر قصبے کے اوپر کتنی کتنی فوجیں اور کتنی کتنی پولیس فورس جو ہے تعینات ہے، اور وہ مستقل ان کو ابیوز بھی کرتے ہیں، فزیکلی بھی مینٹلی بھی ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کے گھروں میں گھستے ہیں، ان کے جوانوں کو وہاں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، کسی کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں، کسی کو بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی مقدمے کے وہ انڈر کسٹڈی وہ قتل بھی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی لاشیں بھی ان کے گھر والوں کو واپس نہیں کرتے بلکہ کہیں ویرانوں میں جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب اتنی ظلم اور اتنی بربریت آپ ڈیلی بیسس پہ برداشت کرو گے، جب آپ کے سامنے آپ کی ماؤں اور بہنوں کی عزتیں جو ہے وہ ان کے اوپر حرف آ رہا ہو اور ان کے اوپر بری نظریں ہو لوگوں کی، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں تو ریٹیلیٹ کرتے ہو کسی نہ کسی طرح سے، تو آپ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہو، اور اس غصے کو اور اس اظہار کو ہی فریڈم فائٹنگ کہتے ہیں۔ وہ فریڈم لونگ پیپل ہے۔ ایک طرف تو آپ جمہوریت اور فریڈم کی بات کرتے ہو، یورپ میں لبرٹی کی بات ہوتی ہے، لبرلزم کی بات ہوتی ہے، اس میں ہر قسم کی فریڈمز کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک جو بیسک ہیومن فریڈم ہے جس میں آپ ایک اپنی پسند کی حکومت، اپنی پسند کی گورنمنٹ، اپنی پسند کے مذہب، اپنی جو حق کی رائے جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جو حق ہے، اس سب کو آپ پامال کر کے اور ان کو بالکل ہی یعنی کہ غلامانہ طریقے کی ان کے اوپر اپریشن کر کے ان کو دبا کے رکھنا، مطلب کتنا بھی میں بول دوں اس کے لیے کم ہے۔ بہرحال تو اسی قسم کے جو ریٹیلیشنز ایکشنز ہیں اسی طرح کا ایک پونچھ میں ہوا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ 2 دن پہلے 23 اپریل، اور یہ آرمی کی ایک ٹرک وہاں سے گزر رہا تھا پونچھ کے علاقے میں، اور اس کے اوپر بلٹ سے فائر ہوا ہے، اور جو بلٹ استعمال ہوئی ہیں وہ اسٹیل کور بلٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین اس کے مطابق یہ اسٹیل کور بلٹس یوز ہوئی ہیں جو کہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ آرمرڈ شیلڈ جس کو آپ کہتے ہیں نا بختر بند گاڑی، یا جس کو آپ کہتے ہیں بلٹ پروف جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی وہ پیئرس کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اٹیکرز تھے انہوں نے جو سولجرز کے ویپنز تھے ان کو بھی وہ لے کر کے بھاگ گئے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 5 soldiers were killed and 1 was injured۔ یہ اس پنچ میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ٹرک کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اور اس میں 5 جو انڈین فورسز ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے؟ بھٹا دوریا کے ڈینس فارسٹ علاقے میں، جو کہ پونچھ میں آپ کو یہ گوگل ارتھ سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، یہ جموں مقبوضہ کشمیر ہے۔ جموں اور کشمیر کس کو کہتے ہیں؟ اس ویلی کو کہتے ہیں، یہ جو پہاڑوں کے بیچ میں یہ ویلی ہے اس کو کہتے ہیں کشمیر ویلی، اور یہ ان پہاڑوں کے جو نیچے کی طرف ہیں فٹ ہلز پہ، ایسٹ کی طرف ویسٹ کی طرف، ساؤتھ کی طرف یہ جو علاقے ہیں ان کو جموں کہتے ہیں۔ جموں شہر بھی ہے جو کہ یہ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اسی جموں کے علاقے میں یہ جو پورا ریجن ہے جموں کا، اس میں پونچھ کا علاقہ بھی ہے، اور پونچھ کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ بھٹا دھوریاں کا یہ فارسٹ والا علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہاں پہ کسی سڑک پہ یہ فوجی ٹرک جا رہا تھا جس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں
इंडियन जो नैरेटिव है उनके मुताबिक जी ये क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर है, यहाँ से जो है ट्रेन होकर के जो टेररिस्ट उनके मुताबिक जो हमारे ख्याल में मुजाहिदीन हैं और फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर और असलहा लेकर यहाँ पे घुस आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर अटैक करते हैं और बाज़ दफ़ा वो अटैक कर कर के वापस भी चले जाते हैं। तो लिहाज़ा ये इस इलाके को इस तरह से वोलेटाइल वो समझते हैं कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और लाइक इससे पहले भी यहाँ पर गोया के वाक़यात होते रहे। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसी रिपोर्ट में ये थोड़ी-सी डिटेल है। उन्होंने कहा कि स्नाइपर जो है उनके ख़्याल में एक स्नाइपर भी था उनके साथ जिसने पहले एक साइड से टारगेट किया उनको और जब वो बौखला गए तो दूसरी साइड से दूसरे जो उनके साथी थे उन्होंने बहुत सारी बुलेट्स उनको मार के शावर ऑफ द बुलेट्स उसके वजह से वो 5 के 5 जो भी उसके अंदर थे वो मारे गए। उनको कोई मौका नहीं मिला कि वो कुछ अपनी लिए कर सकते और जो आर्म्स और एमुनिशन इस ट्रक में मौजूद था वो लेकर के भाग गए हैं ये टेररिस्ट। अब भट्टा दुनिया फॉरेस्ट के बारे में वो कह रहे हैं कि इट रिमेन्स अ नोटोरियस इन्फिल्ट्रेशन रूट फॉर टेररिस्ट अटेम्प्टिंग टू स्नीक इनटू इंडिया बाय क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल ड्यू टू टोपोग्राफी, डेंस फॉरेस्ट कवर एंड नेचुरल केव्स। यानी क्योंकि यहाँ पर केव्स भी हैं और डेंस फॉरेस्ट है जिसमें छुपना आसान है और फिर ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है जहाँ से आगे पीछे बॉर्डर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। तो लिहाजा लाइक ये इंडिया की इसमें इल्ज़ाम तराशी तो है ही, लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप एक इलाके को फ़ोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लोगे, जब आप उनके जिस तरह फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन का इलाका फ़ोर्सफुली ऑक्यूपाई हुआ है। अब वहाँ के जो लोग हैं हमास के फ्लैग के अंडर या किसी पीएलओ के फ्लैग के अंदर या किसी भी फ्लैग के नीचे वो सिविलियंस जो है वो आकर के रिटेलिएट तो करते हैं गाहे बगाहे किसी न किसी तरह से। वो इंसान है और इंसान तो अपने गुस्से का इज़हार करेगा, वो बेशक अपनी जान दे देगा जब वो अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपने लोगों की हुर्मत के लिए, अपने घर वालों की हुर्मत के लिए वो किसी भी हद तक रिबेलियन हो सकता है और वो जो रिटेलिएट करेगा। तो the onus of the rebellion, the onus of the retaliation falls upon the occupying forces, not upon the bordering states who are trying to be humanitarianly helping these people कि भाई चलो अगर ये भाग करके यहाँ आए हैं तो अब हम इनको धक्के देकर तो वापस नहीं भेज सकते और हम इनको पड़े रहने देते हैं यहाँ और वो अपनी थोड़ी बहुत ही कार्रवाई अगर करते हैं तो वो हम उनको अगर लाइक एक तरह की पनाह दे देते हैं। तो इसका ओनस इस मुल्क के ऊपर नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर या आज़ाद कश्मीर पे, जो कि उन मज़लूम लोगों की अगर थोड़ी बहुत ही हेल्प कर लेते। असल ओनस तो उन लोगों पे आता है जो कि इस कौम के ऊपर यानी कि एक जेनोसाइडल पॉलिसी के तहत लाइक ये मुस्तकिल 70 साल से यानी एक उनका जेनोसाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अपनी गलत पॉलिसीज़ के ज़रिए। तो ये चीज़ है। सो ये टोपोग्राफी ऐसी है और वाक़ई यहाँ पर थोड़ी बहुत ही इन्फिल्ट्रेशन होती है लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द-गिर्द और उसमें सिर्फ़ आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते बल्कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये असल में तो इन्हीं के भाई हैं। आज़ाद कश्मीर और जम्मू और कश्मीर जो है ये दोनों एक ही इलाका है, ये एक ही स्टेट है और वो अगर लोग समझते हैं कि हमें अपने भाइयों की हेल्प करनी चाहिए तो वो एक आज़ाद और खुदमुख्तार टेरिटोरी है जो सिर्फ़ इल्हाक हुआ हुआ है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान जो है उनके बहुत सारे मामलात को देखता है लेकिन उनकी आइडेंटिटी को वो स्मैश नहीं करता। उन्होंने उनकी आइडेंटिटी अपने तौर पे बरकरार है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब इस वाक़ये के फ़ौरन बाद जो है फ़ारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और पुराने चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये कहा कि जो फ़ोर्सेस हैं मतलब आर्मी हो गई या पुलिस फ़ोर्स जो वहाँ पे तैनात है, वो इनोसेंट जो लोगों को जो पब्लिक है उसको हैरेस कर रही हैं और वो इस बात के ऊपर हैरेस कर रही हैं
ہیں कि जब वो उनके ऊपर ये अटैक हुआ, तो वो पुंछ के लोग के इलाके में लोगों को घरों में घुस-घुस के और उनसे सवालात कर रही हैं, उनकी इंक्वायरी कर रही हैं और इस तरीके से जब वो करती हैं, तो वो उनका अब्यूज़ कर रही होती हैं और उनके जो है वो उनको दे आर हरासिंग इनोसेंट्स ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन। ये कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, जिसके जवाब में बीजेपी के जो स्पोक्स पीपल हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है, ये इल मोटिव है। ये इल मोटिव को बनाने के लिए वो कर रहा है ताकि लोग जो है कम्युनिटीज़ के बीच में वेज क्रिएट हो जाए, दरारें पड़ जाएँ और जो है पुलिस और जो आर्म फोर्सेस से कोऑपरेट करने से बाज़ रहे, इस तरह का इल मोटिव पैदा करना चाह रहा है फारूक अब्दुल्ला। अब बात ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का साथ दिया हमेशा और इंडियन गवर्नमेंट से वो मुख्तलिफ ओहदों के तलबगार रहते हैं, ये वो लोग हैं। इनके बेटे जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इनका जो नैरेटिव होता है वो इतना प्रो फ्रीडम नहीं होता। इनका नैरेटिव यही होता है कि हम इंडिया का ही एक हिस्सा हैं और उसी की असेंबली का हम पार्ट हैं, तो लिहाजा हमारे लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए इंडिया के साथ। लेकिन जब उनको वो सीट नहीं मिल रही होती, जब वो पावर में नहीं होते, तो उस वक़्त वो फिर एंटी इंडिया बयानात इस किस्म के थोड़े बहुते ये देते रहते हैं। तो ये लिहाजा इस तरह से हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला ने थोड़ी-सी इस बात पे आवाज़ उठाई है। अब इनका क्या और इंडियन नैरेटिव है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा इसकी डिटेल बता दूँ कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो चीफ हैं सैयद सलाउद्दीन, वो जो है आज से बहुत साल पहले क्योंकि जब से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया लाइक इंडियन फोर्सेस ने कि ये टेररिज्म करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये भाग करके आज़ाद कश्मीर के अंदर आकर के इन्होंने ये छुप गए और इंडियन फोर्सेस के मुताबिक, इंडियन नैरेटिव के मुताबिक 13 पाकिस्तान बेस्ड कश्मीर सेंट्रिक टेररिस्ट आउटफिट्स को वो गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। यानी कि वो बेशुमार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं या बनाते हैं वो और उनको वो भेजते हैं टेररिज्म करने के लिए ये इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन ये तो उनका नैरेटिव है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने ये कल के ही दिन ऐसा किया है कि ये जो सैयद सलाउद्दीन के जो 2 बेटे हैं, जिनको उन्होंने पहले ही जेल में रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ये बहुत पहले से कुछ साल पहले से इधर मैं आपको बता देती हूँ। इनके जो दोनों बेटे हैं वो जेल में हैं इंडिया के अंदर और अब उनके जो बेटों की जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे घर होंगे, उनको भी उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया है और इस बात के ऊपर कि ये जो बेटे हैं सलाउद्दीन इनको पैसे और वेपन्स भेजते रहे हैं और ये अपनी जगह को और अपने उसको यूज़ करते रहे अटैक्स के लिए। अब ये देखिए मैं सिर्फ ये इसलिए इस चीज़ को सामने ला रही हूँ कि एक आदमी जो कि अपने घर से बेघर हुआ, भागा हुआ है, छुपा हुआ है और उसके बाद ये कि उसके 2 बेटे जो हैं जवान, उनको जेल में रखा गया हुआ है और ज़ाहिर है इंडियन फ़ोर्सेस जब उनको जेल में रखेंगी इंडिया के अंदर, तो उनके ऊपर तशद्दुद भी करेंगी, उनके साथ हर तरीक़ा का बुरा सलूक भी करेंगी। तो क्या उस बाप के लिए ये बेहतर नहीं है कि वो किसी तरीके से भी हथियार डाले और उनसे प्ली करे कि मेरे बेटों को छोड़ दो, हम ये इस काम से बाज़ आ जाएँगे। लेकिन क्यों नहीं वो ऐसे करते? क्योंकि आज़ादी इतनी बड़ी ज़रूरत है, इंसानी ज़रूरत है कि उसके लिए लोग अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने सुकून को, अपनी आइडेंटिटी को कुर्बान करते हैं। वो चुप करके वो पनाह में बैठे हुए हैं और चुप करके वो ये काम करें। ज़ाहिर है मुश्किलात से घिरे हुए मुश्किलात के अंदर और अपनी जान को खतरे में डालकर और वो जो बच्चे जो कैडर्स की बात कर रहे हैं कि जी वो ये ग्रुप्स को लीड कर रहा है, तो वो क्या वो बच्चे नहीं चाहते कि वो हमारे बच्चों की तरह आराम से कॉलेजेस में पढ़ें और आराम से वो अपनी जॉब्स करें और अपने आराम से शादियाँ करें और मतलब एन्जॉय करें लाइफ को, क्या वो नहीं चाहते? तो वो क्या चीज़ उनको मजबूर करती है कि वो इस तरह से टेररिस्ट आउटफिट्स जिनको वो कह रहे हैं या फ्रीडम फाइटिंग के अंदर वो मुलविस हो जाएँ?
तो दिस इज़ द थिंग, ये एक हकीकत है, इसलिए कश्मीर के इश्यू को बार-बार हम उठाते हैं, बार-बार इसको रिमाइंड करवाते हैं, बार-बार इसके बारे में बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो फैमिलीज़ हैं कश्मीरी, जो हमारे बिल्कुल फर्स्ट डोर नेबर नहीं है, बल्कि हमारे आइडेंटिटी, हमारे इस पूरे जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। हम समझते हैं जब तक उनको उनकी आज़ादी नहीं मिलती, तब तक हम समझते हैं कि वो हमारा हिस्सा है और हमने उनको वो आज़ादी दिलवानी है। तो उस चीज़ को भूलना जो है